अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम आज के लेक्चर में 10th क्लास के बच्चों को सर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की गज़ल पर तबसरा करेंगे। सर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, इनके बारे में हम आपको कुछ बताएंगे। देखिए बच्चों, इनका पूरा नाम क्या है? सर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। इनका असली नाम है, देखिए, इनका असली नाम है शेख मोहम्मद इकबाल। शेख मोहम्मद इकबाल। और तखल्लुस इनका क्या है? इकबाल। तखल्लुस इकबाल। सर का खिताब इनको किस सन में मिला था और किस सरकार ने दिया था? देखिए बच्चों, सर का खिताब 1923 ईस्वी ईस्वी हुकूमत बरतानिया ने दिया था। बरतानिया ने दिया था। और पीएचडी की डिग्री इन्होंने किस यूनिवर्सिटी से हासिल की थी? देखिए बच्चों, पीएचडी की डिग्री इन्होंने मायूख यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। पैदाइश इनकी है 1877 ईस्वी। मुकाम सियालकोट। सियालकोट में पैदा हुए थे। और वफ़ात इनकी 1938 ईस्वी में 1938 ईस्वी में लाहौर में हुई थी। इनके उस्ताद अल्लामा इकबाल के उस्ताद कौन थे? मीर हसन। सैयद मीर हसन। सैयद मीर हसन थे। अल्लामा इकबाल 1877 में सियालकोट में पैदा हुए थे। इन्होंने शमसुल उलमा मौलवी सैयद मीर हसन से फ़ारसी अरबी की तालीम हासिल की। सियालकोट में एक अंग्रेज़ी स्कूल से इम्तियाज़ के साथ एंट्रेंस का इम्तिहान पास किया। लाहौर में आला तालीम हासिल की और बीए और एमए के इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल की। इनको शायरी का शौक़ बचपन से था। इब्तदाई तालीम
کے زمانے سے ہی یہ شعر کہنے لگے تھے۔ اس وقت ہندوستان میں داغ کی شاعری کا ڈنکا بج رہا تھا۔ داغ کی اصلاح نے اقبال کے کلام میں روانی اور زبان میں صفائی پیدا کی۔ انہوں نے یورپ کا سفر کیا، وہاں فلسفے میں مہارت حاصل کی۔ اس کے بعد جرمنی چلے گئے، جہاں انہوں نے میوک یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد بیرسٹری شروع کر دی۔ اقبال کی اعلیٰ مقبولیت اور علمی مشاغل سے متاثر ہو کر حکومت برطانیہ نے انہیں سر کا خطاب عطا کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی انہیں مختلف اعزازات سے نوازا گیا۔ عمر کے آخری ایام یعنی دن میں اقبال کی صحت خراب رہنے لگی اور آواز بھی ان کی بند ہو گئی تھی۔ بالآخر 21 اپریل 1938 کو لاہور میں انہوں نے انتقال کیا۔ ایک طویل علالت یعنی بیماری کے بعد انہوں نے انتقال کیا۔ اقبال کی شاعری کی ابتدا غزل سے کی۔ انہوں نے نظمیں بھی لکھی ہیں۔ بچوں کی نظموں میں انہوں نے قومی ترانہ بچی کی دعا بھی لکھے۔ اقبال نے اردو شاعری میں مختلف جہات سے اضافہ کیا۔ اقبال نے اپنی شاعری کو اپنے خاص پیام اور تعلیمات کا ذریعہ بنایا تھا۔ ان کی تمام تر فکر میں حرکت و عمل کا فلسفہ کار فرما ہے۔ اقبال بلند ہمتی، خودداری، سربلندی اور دل نظر کی وسعت کی تعلیم دیتے تھے اور ان اوصاف کو انسانیت کی بقا کے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ اب آگے ہم بتائیں گے بچوں اقبال کی غزل کی تشریح۔ سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی غزل ہے، یہ ایک مسلسل غزل ہے۔ اس غزل میں انہوں نے دنیا اور آخرت دونوں کا ذکر کیا ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ انسان کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، یعنی دنیاوی امتحان کے بعد ہمیں حقیقی امتحان بھی دینا ہے، آخرت کا امتحان بھی دینا ہے۔ دنیاوی زندگی ہی صرف زندگی نہیں ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ شاعر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ انسانوں کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، یعنی دنیاوی امتحان کے بعد آخرت کا امتحان دینا ہے، دنیاوی ہی زندگی نہیں ہے۔ تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ تہی مانے خالی، کارواں مانے قافلہ، جماعت، گروہ۔ شاعر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خالی زندگی ہی سے یہ فضائیں، یہ رونق موجود نہیں ہے۔ خالی دنیاوی زندگی سے ہی یہ فضائیں، یہ رونق موجود نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی زندگی ہے۔ زندگی مسلسل ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی سینکڑوں
काफ़िले मौजूद हैं जो मरने के बाद हमारे सामने आएंगे। तही ज़िंदगी से नहीं ये फ़िज़ाएँ, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। शायर अल्लामा इकबाल कहते हैं कि खाली ज़िंदगी यानी दुनियावी ज़िंदगी से ये रौनक ये फ़िज़ाएँ नहीं हैं, इसके अलावा भी सैकड़ों कारवां और काफ़िले मौजूद हैं जो मरने के बाद हमारे सामने आएंगे। कनाअत न कर आलमे रंग बू पर, चमन और भी आशियाँ और भी हैं। कनाअत माने सब्र, आलम माने आलमे रंग, बू माने दुनिया, आशियाँ माने मुकाम घर। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ऐ लोगों, ऐ इंसानों, सिर्फ दुनिया पर ही सब्र ना करो, क्योंकि इसके आगे और भी चमन और भी मुकाम मौजूद हैं। सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी पर ही सब्र ना करो, क्योंकि इसके आगे इसके अलावा भी चमन और आसिया यानी मुकाम मौजूद हैं। कनाअत न कर आलमी रंग बू पर, चमन और भी आशियाँ और भी हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ऐ लोगों, सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी पर सब्र ना कर, क्योंकि इसके अलावा और भी चमन और भी मुकाम आशियाँ मौजूद हैं। अगर हो गया एक नसीमन तो क्या गम, मुकामात आहो फ़ुगा और भी हैं। नसीमन माने मुकाम घर, आहो फ़ुगा आहो जारी करना, रोना चिल्लाना। ऐ लोगों, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ऐ लोगों, अगर एक मुकाम एक नसीमन खोने का तुझे गम है तो उसका गम ना कर, क्योंकि इसके अलावा भी दुख और परेशानियों को बर्दाश्त करने के मुकामात मौजूद हैं, आहजारी करने के मुकामात मौजूद हैं। अगर हो गया एक नसीमन तो क्या गम, मुकामात आहो फ़ुगा और भी हैं। अल्लामा इकबाल शायर कहते हैं कि ऐ लोगों, अगर एक नसीमन एक मुकाम तुझे खोने का गम है तो उसका गम ना कर, क्योंकि इसके अलावा भी तकलीफ़ और दुख बर्दाश्त करने के, आहो फ़ुगा करने के मुकामात मौजूद हैं। तो शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आशियाँ और भी हैं। तो शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आशियाँ और भी हैं। शाही माने परिंदा, परवाज़ करने वाला परिंदा। आशियाँ माने मकाम घर, घोंसला। शायर अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ऐ इंसान, तू एक परिंदा है, तू एक शाहीन है, तेरा काम है परवाज़ करना, क्योंकि तेरे सामने बहुत से मकामात मौजूद हैं जहाँ तक तुझे पहुँचना है। तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आशियाँ और भी हैं। ऐ इंसान, तू एक परिंदा है, तेरा काम है परवाज़ करना, क्योंकि तेरे सामने और भी मकाम मौजूद हैं जहाँ तक तुझे पहुँचना है। इसी रोज़ शब में उलझ कर न रह जा, कि तेरे ज़मा व मका और भी हैं। शायर अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ऐ लोगों, तुम इसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उलझ कर ना रह जा, तू इसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उलझ कर ना रह जा, क्योंकि तेरे सामने इसके अलावा भी ज़माना और मकान मौजूद हैं जहाँ तक तुझे पहुँचना है। इसी रोज़ शब में उलझ कर न रह जा, कि तेरे ज़मा मका और भी हैं। ऐ लोगों, तू इसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उलझ कर ना रह जा, क्योंकि तेरे सामने ज़माना मकान और भी मौजूद हैं जहाँ तक तुझे पहुँचना है। गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। शायर अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इस दुनिया की महफ़िल में, जब मैं दुनिया में था और इस दुनिया की महफ़िल में था तो तन्हा था, लेकिन अब मेरे मरने के बाद वहाँ मेरे राज़दां मौजूद हैं, बहुत से राज़दां बहुत मौजूद हैं, यानी मेरे राज को जानने वाले मौजूद हैं। राज़दां माने राज को जानने वाला, अंजुमन माने महफ़िल। गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं।
اس دنیا میں کی محفل میں جب میں تھا تو میں تنہا تھا، اکیلا تھا، اب میرے مرنے کے بعد یہاں میرے بہت سے رازداں یعنی راز کو جاننے والے موجود ہیں۔ اب میرا لیکچر ختم ہوا۔ اب اس کے آگے کے لیکچر میں ہم دوسرے موضوع پر تبصرہ کریں گے۔ خدا حافظ۔